Good morning, dear students. Today I am here to discuss a new topic, and the topic is central nervous system. Since we know that human nervous system is divided into three types of nervous systems: CNS, central nervous system; PNS, peripheral nervous system; and ANS, autonomic nervous system. So, out of these three nervous systems, today I want to discuss central nervous system, and especially I will discuss the first one part of the nervous system of central nervous system, and it is brain. So today I will discuss about the structure of the brain, various parts of the brain and their functions. So students, initially I want to tell you that brain is the highest coordinating center of the human body. मीन्स कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन की प्रोसेस में जो हाईएस्ट सेंटर हम जिसको कह सकते हैं वो ब्रेन है. एंड ह्यूमन ब्रेन इज़ लोकेटेड एट द क्रेनियल कैविटी ऑफ द स्कल. यानी स्कल में एक कैविटी होती, क्रेनियल कैविटी. उस कैविटी के अंदर आपका ब्रेन लोकेटेड होता है. एंड अप्रॉक्सीमेटली इट हैज़ 1400 ग्राम मास. तो इसका जो मास होता है अप्रॉक्सीमेटली 1400 ग्राम्स होता है. एंड if you will observe the structure of the brain, you will find out that the brain is divided into three regions. आपका जो brain है it is divided into three regions: forebrain, midbrain and hindbrain. तो ये तीन regions जो हैं, फर्स्ट रीजन इसका होता है forebrain, दूसरा रीजन होता है midbrain एंड द लास्ट जो बॉटम का रीजन होता है इसको बोलते हैं hindbrain. ठीक है. नाउ अब बात करें इनिशियली forebrain की. तो forebrain includes cerebrum and olfactory lobes. तो वी कैन से दैट forebrain फॉर्म्स द रूफ ऑफ द ब्रेन. यानी जो forebrain है एक्चुअली ये ब्रेन की रूफ फॉर्म करता है. एंड ये दो पार्ट से मिलकर के बना हुआ होता है बेसिकली, cerebrum एंड olfactory lobes. एंड forebrain इज़ द मेन थिंकिंग पार्ट ऑफ द ब्रेन. हम कह सकते हैं कि forebrain जो है वो ब्रेन का मेन थिंकिंग पार्ट है. एंड if you will observe, or if you will see, or if you will observe this one figure which is given in the slide, you will find out that the forebrain's topmost part is dome shape. गुंबद के आकार का आप देख रहे हैं, ये डोम शेप स्ट्रक्चर जो देख रहे हैं ये आपका सेरेब्रम वाला पार्ट है. ठीक है. नाउ यू कैन ऑब्जर्व हेयर, you can easily identify the structure of the brain. You are observing which is cerebrum. Cerebrum is the dome shaped part or the roof of the brain actually. ठीक है. And the second part is called as olfactory lobe, and it's mentioned here olfactory lobe not visible but lie below the cerebrum. तो यानी cerebrum के ही नीचे इसमें visible नहीं है because it's a two dimensional structure. तो आपका olfactory lobe located होता है. And you are observing this structure is completely forebrain. And here you can observe which part of the brain is midbrain and which part of the brain is hindbrain. And you are observing hindbrain के three different parts हैं. Later on I will discuss about them. तो सबसे पहले बात करते हैं बेटा forebrain की. तो forebrain is the largest part of the brain. ठीक है. एंड अगर हम देखें तो forebrain में सबसे पहला पार्ट कौन है? सेरेब्रम. तो सेरेब्रम जो है ब्रेन का सबसे लार्जेस्ट पार्ट है. ठीक है. एंड इट हैज़ डिफरेंट एरियाज़. यानी सेरेब्रम के पास अलग अलग एरियाज़ हैं जो अलग अलग फंक्शन को परफॉर्म करते हैं. ठीक है. फॉर एग्जांपल द सेरेब्रम हैज़ सेंसरी एरियाज वेयर इंफॉर्मेशंस आर रिसीव्ड फ्रॉम सेंस ऑर्गन्स कॉल्ड रिसेप्टर्स. सिमिलरली cerebrum has another part which is called motor areas from where instructions are sent to the various muscles of the body called effectors to do various functions. तो कहने का मतलब है कि there are basically two different regions. ठीक है. फर्स्ट रीजन वी कैन से दैट सेंसरी एरियाज़ एंड द सेकंड रीजन वी कैन से दैट मोटर एरियाज़. तो सेंसरी एरियाज़ का क्या फंक्शन है कि जितने भी सेंस ऑर्गन के पास रिसेप्टर्स हैं वो रिसेप्टर्स जितने भी सिग्नल्स भेजेंगे, जितने भी नर्व इम्पल्सेस को भेजेंगे, उन सब नर्व इम्पल्सेस को ये रिसीव करेगा और उन्हें एनालाइज करेगा. वहीं जो आपका मोटर एरिया है, मोटर एरिया क्या करेगा? जो भी इंस्ट्रक्शंस भेजने हैं, अब देखिए सेंसरी न्यूरॉन्स तो आपके सिग्नल्स लेकर के आए, उसके बाद आपका ब्रेन ने एनालाइज़ किया, एनालाइज करने के बाद जो भी सिग्नल वापस ले जाना है उस सिग्नल को वापस भेजने का काम मोटर एरिया करेगा. ठीक है. और कहाँ तक भेजेगा? इफेक्टर ऑर्गन्स तक भेजेगा. देर आर स्पेसिफिक रीजन्स इन द सेरेब्रम फॉर ईच काइंड ऑफ द स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स. तो आई वॉन्ट टू इंक्लूड वन मोर थिंग कि जो ब्रेन है, ब्रेन का जो सेरेब्रम वाला रीजन है, सेरेब्रम है, तो सेरेब्रम के पास कुछ स्पेसिफिक रीजन होते हैं. And each specific region of the cerebrum
can detect a particular kind of stimulus and give a particular kind of response. So I want to discuss what are these areas. तो बेसिकली देर आर 4 डिफरेंट एरियाज. ओसीपिटल लोब. ओसीपिटल लोब जाहिर सी बात है कि ओसीपिटल लोब जो है वो आपके विजुअल जो भी इम्पल्सेज आएंगी उनको रिकॉग्नाइज करेगा. ठीक है, यानी आँख के थ्रू, आइज़ के थ्रू जो भी सिग्नल्स आएंगे उन सिग्नल्स को डिटेक्ट करने का काम कौन करेगा? ओसीपिटल लोब. ठीक है. द सेकंड इज टेम्पोरल लोब. टेम्पोरल लोब इज़ द रीजन ऑफ द हेयरिंग. टेम्पोरल रीजन जो है ब्रेन का वो हेयरिंग का रीजन है, यानी ईयर के थ्रू जो भी नर्व इम्पल्सेज आएंगी वो कहाँ रिसीव होंगी? आपकी टेम्पोरल लोब पे होंगी. तीसरा होता है फ्रंटल लोब. फ्रंटल लोब अब दो काम करता है, देखिए बेटा. एक्चुअली द फ्रंटल लोब इज़ अ रीजन ऑफ स्पीच, फेशियल एक्सप्रेशंस और फेशियल मस्कुलर एक्टिविटीज़ एज वेल एज हायर मेंटल एक्टिविटीज़. तो फ्रंटल लोब जो है वो आप जो जैसे मैं बोल रहा हूँ अभी, मेरी स्पीच दे रहा हूँ तो मैं सोच समझ के स्पीच दे रहा हूँ, तो फ्रंटल लोब इसको कंट्रोल कर रहा है. साथ ही कई तरह के फेशियल मस्कुलर एक्टिविटीज़ जो होती हैं, फेशियल एक्सप्रेशंस जो होते हैं, उसको भी कौन कंट्रोल कर रहा है? फ्रंटल लोब कंट्रोल कर रहा है. और आप लोग पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, सीख रहे हैं चीज़ों को, यानी आप हायर ऑर्डर मेंटल एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, तो ये भी सारा कौन कंट्रोल कर रहा है? फ्रंटल लोब. तो दीज आर द 3 lobes and the fourth one lobe is called parietal lobe. Parietal lobe is a region of taste, smell and touch as well as the conscious association. तो जो आपका पैरिएटल लोब है, पैरिएटल लोब इज़ द रीजन फॉर द बेसिकली टेस्ट. स्मेल तो नहीं कहना चाहिए क्योंकि स्मेल के लिए ऑल्फैक्टरी लोब अलग से एक आपका सेरेब्रम के साथ एक लोब होता है. ठीक है. इट्स अ रीजन फॉर टेस्ट, टच एंड कॉन्शियस एसोसिएशन. अब ये तो 4 आ गए आपके किसके? सेरेब्रम के अंदर. अब पांचवा जो होता है लोब वो अलग से होता है, जिसको हम ऑसिपिटल लोब बोलते हैं. ऑसिपिटल लोब इज़ द पार्ट ऑफ द फोर ब्रेन विच लाइज बिलो द सेरेब्रम. तो ये जो ऑसिपिटल लोब होता है ये भी फोर ब्रेन का ही पार्ट है, बट ये सेरेब्रम के नीचे लाई करता है. एंड दे कंटेन ऑल्फैक्टो रिसेप्टर्स. इनके पास ऑल्फैक्टो रिसेप्टर्स होते हैं जिनकी हेल्प से ये स्मेल को डिटेक्ट करने का काम करते हैं. इज इट क्लियर? नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, मिड ब्रेन. Now here in this figure you can observe various lobes. ठीक है, you can observe parietal lobe, you can observe occipital lobe, ठीक है, temporal lobe, frontal lobe. ठीक है, there are various lobes of the forebrain you are observing here. ठीक है, and you are observing motor areas as well as the sensory areas. Now I am coming to the next point, midbrain. Midbrain is the part of the brain which connects forebrain with the hindbrain. Midbrain ब्रेन का वो पार्ट है जो फोर ब्रेन को हाइंड ब्रेन के साथ क्या करता है? कनेक्ट करता है. नाउ व्हाट इज इट्स फंक्शन? इसका फंक्शन जो है, इट कंट्रोल्स ऑल द रिफ्लेक्स मूवमेंट्स ऑफ द हेड, नेक, ट्रंक इन रिस्पॉन्स टू द विजुअल एंड ऑडिटरी स्टिमुलाई. यानी कोई भी विजुअल स्टिमुलाई आ रहा है आँखों के थ्रू, आइज़ के थ्रू, कोई भी ऑडिटरी इम्पल्सेस आ रही हैं ईयर्स के थ्रू, तो उनके अकॉर्डिंग जो रिफ्लेक्स मूवमेंट होते हैं, चाहे हेड का मूवमेंट हो, चाहे नेक का मूवमेंट हो, चाहे ट्रंक का मूवमेंट हो, उन मूवमेंट्स को करने में मदद करता है. The last part of the hindbrain is called as last part of the brain is called as hindbrain. ठीक है. इट कंसिस्ट ऑफ 3 सेंटर्स कॉल्ड सेरेबेलम, पॉन्स एंड मेडुला ऑब्लंगाटा. देखो पहले वाले पे सेरेब्रम था, यहाँ पे सेरेबेलम है. दोनों में कन्फ्यूज़न नहीं करना है. सेरेबेलम इज़ द पार्ट ऑफ द हाइंड ब्रेन और सेरेब्रम इज़ द पार्ट ऑफ द फोर ब्रेन. तो मैं बात कर रहा हूँ हाइंड ब्रेन की, तो वी कैन से दैट सेरेबेलम इज़ द फर्स्ट पार्ट ऑफ द हाइंड ब्रेन विच फॉर्म्स द रूफ ऑफ हाइंड ब्रेन. सेरेब्रम फोर ब्रेन की रूप बनाता है, सेरेबेलम हाइंड ब्रेन की रूप बनाता है. दिस रीजन कंट्रोल्स द कोऑर्डिनेशन ऑफ द बॉडी मूवमेंट्स एंड पॉस्चर्स. तो बेसिकली सेरेबेलम का क्या काम है? ये बॉडी के जितने भी पॉस्चर्स हैं इनको कंट्रोल करता है. इसके साथ साथ बॉडी के जितने भी वॉलेंटरी मूवमेंट है उनको कंट्रोल करने का काम करता है. क्लियर? नाउ द नेक्स्ट part of the hindbrain is pons. Now if you want to see in figure, here in the figure you can see that which part of the hindbrain, you can see that but where is cerebellum, you can see. ठीक है, जलेबी की तरह दिख रहा है आपको सेरेबेलम वाला पार्ट. देन पॉन्स दिख रहा होगा उसके नीचे, और सबसे लास्ट में एक स्टाल्क लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसको मेडुला ऑब्लंगाटा बोलते हैं. ठीक है, जो कि आपका स्पाइनल कॉर्ड के साथ जाकर के अटैच हो जा रहा है. ठीक है, और वहीं मिड ब्रेन देखिए आप, बीच में आपको अलग से नज़र आ रहा होगा. ठीक है. नाउ कमिंग टू द स्लाइड. तो हाइंड ब्रेन का जो फर्स्ट पार्ट है मैंने आपको डिस्कस किया, सेरेबेलम. सेकंड पार्ट पॉन्स, इट लाइज जस्ट अबव द मेडुला ऑब्लंगाटा एंड इट रेगुलेट्स द रेस्पिरेशन रेट. ठीक है, तो पॉन्स को हम कह सकते हैं कि रेस्पिरेटरी सेंटर इसके पास है जो कि रेस्पिरेशन की प्रोसेस को कंट्रोल करने का काम करता है. लास्ट पार्ट इज मेडुला ऑब्लंगाटा. मेडुला ऑब्लंगाटा फॉर्म्स द फ्लोर ऑफ द हाइंड ब्रेन. सेरेबेलम रूफ है तो ये फ्लोर है, मेडुला ऑब्लंगाटा फ्लोर है, एंड इट कंटिन्यूज टू स्पाइनल कॉर्ड. तो ये ब्रेन आपका स्पाइनल कॉर्ड में मेडुला ऑब्लंगाटा के थ्रू कंटिन्यू करता है. इट इज़ ऑल्सो रेगुलेटिंग सेंटर. ये भी एक तरह का रेगुलेटिंग सेंटर है. किस किस चीज़ के लिए? स्वेलोइंग के लिए, निगलने के लिए किसी चीज़ को, कफिंग, स्नीजिंग एंड
वो मीटिंग के लिए. So this is all about brain. Now if somebody is going to ask you that what are the functions of the brain, so you can easily answer brain is the highest coordinating center and it controls all the higher activities of the all the metabolic activities of the body. ठीक है. And it also helps to it to store things in the form of the memory. ठीक है. And also helps to detect various stimulus. So I think it's enough for today. Thank you. Bye bye and have a nice day.